emoji wala, you'll have a button over there. Just you can click on that and you can give a thumbs up if you're able to hear me. Or if you're not able to hear me, also just let me know. आपको अगर कुछ पूछना हो तो आप डायरेक्टली अनम्यूट करके आप पूछ सकते हो. अगर आपको कुछ कहना हो, then you can directly write in the chat and you can ask your questions. Right? So we can via chat we can interact or we can interact by directly unmuting yourself. क्योंकि काफी ज्यादा बच्चे वहां पे बैठे हुए एक साथ, so कई बार बेटर होता है कि कोई चैट पे आके they can write their answer, like they can write their thing on the chat. Alright, so we have Military School Ludhiana, Mohali, Firozpur, Amritsar, and yeah, so we have these schools with us. Okay. Alright, so आज की क्लास में first of all my name is Himanshu और मैं यहाँ पे आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा. So basically I take care of the NEET component and I'm assuming that कि सारे के सारे जो यहाँ पे schools हैं, सारे के सारे जो बच्चे हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, they belong to the NEET program. They belong to the PCB category. Alright, Military School Mohali has also joined in. So पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि I hope आप में से कोई ऐसा नहीं है जो PCM का है and they have reached over here like because of a change in the link or something. So I'm assuming that कि सारे के सारे जो हमारे साथ यहाँ पे बच्चे हैं स्कूल जो जुड़े हुए हैं, they are specifically from the PCB group. Alright, ठीक है. Okay, thank you. Thanks for sharing your attendance over here. Right. So क्योंकि आप PCB से हैं and आप 11th grade के अंदर हैं and I'm assuming that कि आपने अपना preparation तो चालू कर दिया होगा. So first of all मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपका plan क्या है. Like you can write in the chat. What are your plans in terms of Military School Gurudaspur? Okay, yeah, thanks for sharing, ma'am. So मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा यहाँ पे कि आप लोगों के नीट को लेके आपके प्लान्स क्या है, या मैं कहूँगा पीसीबी लेने के आपके यहाँ पे प्लान्स क्या है. क्या आप एमबीबीएस करना चाहते हो, क्या आप बीडीएस करना चाहते हो, डू यू हैव सम अदर प्लान्स, आपको बायोटेक में करियर बनाना है, यू वांट टू गेट इनटू वेटनरी साइंस, यू वांट टू गेट इनटू फिजियोथेरेपी, कुछ और रिसर्च करने का आपका प्लान है. सो यू कैन गिव मी अ कलेक्टिव आंसर इन द चैट इफ यू लाइक, इट विल बी मच मोर बेटर फॉर मी टू सी इन द चैट. So क्या है आपके यहाँ पे plans? MBBS करना है, BDS करना है, क्या आपके plans? So can someone write in the chat what are the plans over here बच्चों के? Or let me to school Talwara. Thanks for sharing. If you're not writing in the chat, then I'll have to assume कि सबका plan है यहाँ पे सिर्फ MBBS करने का. अगर आपके कुछ और भी अगर आपके यहाँ पे plans होते, then you can drop in the chat कि ये करना है हमें. एक collective हमारा plan यहाँ पे ये है. Okay. So let's assume कि you are all planning to go for this MBBS का कोर्स के लिए आप प्लान कर रहे हो, you are trying to get into this undergraduate program of to get into to become a doctor. So to get into this MBBS program जो आपका 5.5 साल का आपका यहाँ पे रहेगा, you have to crack a NEET exam. आपको NEET exam देना पड़ेगा और NEET exam में आपको एक certain score लाना पड़ेगा and then you can get into this MBBS का सीट आपको मिल सकता है. So assuming that right now that all of you have a plan कि हम फ्यूचर में आज से 2 साल के बाद हमारा NEET का एग्जाम देंगे और नीट एग्जाम क्रैक करके हम एमबीबीएस का सीट वहां पे हम सिक्योर करेंगे. आई एम अज्यूमिंग दैट कि आपका यहाँ पे प्लान है. नाउ टेल मी समथिंग, एनीवन कैन राइट इन द चैट कि आपको एमबीबीएस का सीट सिक्योर करने के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए होते हैं. सो यू कैन टेल मी दैट इन द चैट एज वेल. अगर आपको लग रहा है कि आपको एक आइडिया है कि आपको कितना स्कोर चाहिए होता है, देन व्हाट कैन बी द स्कोर जिस स्कोर के ऊपर आपको एमबीबीएस का सीट आपको मिल सकता है. सो या जस्ट राइट इन द चैट. What is the score as per you? Which is the score at which you can say that मेरा MBBS का सीट यहाँ पे मुझे यहाँ पे कंफर्म मिल सकता है? Anyone? No one? Yeah, it's like कि नहीं, अभी नहीं बताना हमें, अभी हम interact नहीं करना. Alright, so याद रखना. So first of all, I'll just give you a brief intro. I think you have already received the information about the MBBS, like for NEET exam. All of you know that the NEET exam आपके यहाँ पे आपका होता है 720 marks का. And out of 720 marks, you need to have a secure score of around like 650. एक 650 आपका एक secure score होता है जिसके ऊपर आपको एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सकता है. Okay, so I'll write the same score like in the chat as well. So you should know that you have to get a score of around like 650 and up. So 650 आपका एक secure score आपका यहाँ पे रहेगा, जिस score के ऊपर you will actually get your MBBS का seat. On this score you can get your MBBS का seat आपका confirm आपको मिल जाता है. अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं एमबीबीएस के बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट कि आपको मेडिसिन में जाना है, सो आपका जो सीट अलॉटमेंट आपका होता है वो आपका 2 तरीके से आपका यहाँ पे होता है. योर सीट अलॉटमेंट विल हैपन ऑल इंडिया लेवल के ऊपर और आपका सीट अलॉटमेंट आपका यहाँ पे होगा स्टेट कोटा के ऊपर. तो मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से समझाता हूँ कि अज्यूम करते हैं आप में से कोई आपके कुछ स्टूडेंट्स हैं एंड दे वांट टू गेट इनटू एम्स दिल्ली. ये आपका प्लान है कि आपको एम्स भोपाल या अगर आपको एम्स दिल्ली में अगर आप वहाँ पे जाना है, तो इन प्रोग्राम्स के अंदर जाने के लिए आपको कैसे आपको लाइक कितना स्कोर चाहिए होगा और आपका अलॉटमेंट कैसा होगा सीट का.
तो अगर आपको लेट्स अज्यूम कि आपका प्लान है दैट यू वांट टू गेट इनटू एम्स दिल्ली, तो एम्स दिल्ली में जाने के लिए यू एक्चुअली हैव टू गेट अ वेरी गुड स्कोर। आपको 680, 690, 700 अगर आप स्कोर ला रहे हो, 700 वहां पे एक सिक्योर स्कोर होता है। अगर आप 700 अगर वहां पे स्कोर कर रहे हो तो ऑल इंडिया कोटा के ऊपर आपको आपका एम्स दिल्ली आपको वहां पे मिल जाएगा, राइट। कई सारे लेट्स आप सब लोग पंजाब से हो, अज्यूम करते हैं आप में से कोई है जिसको चेन्नई से करना है एमबीबीएस, उसे चेन्नई से एमबीबीएस करना है, तो उसके लिए भी उसे ऑल इंडिया कोटा पे ही उसे एडमिशन मिलेगा। सो बेसिकली द पर्सन हैज टू गेट अ वेरी गुड स्कोर एंड देन ही कैन गेट अ सीट इन द चेन्नई के कॉलेज के अंदर। अज्यूम करते हैं आप में से कुछ लोग चाहते हो कि वो लोग करें अपना एमबीबीएस मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से। सो इवन टू डू दैट you have to get a very good score, like you have to get a score of like 690, 680, and then ऑल इंडिया कोटा के ऊपर आपको अपनी वहां पे सीट मिल सकती है। अभी ऑल इंडिया कोटा वाली बात आपको शायद एकदम से यहाँ पे समझना है, सो लेट मी शो यू अ स्क्रीन ओवर हियर, लेट मी शो यू सम स्लाइड्स एंड दैट माइट हेल्प यू अ बिट, नॉट स्लाइड्स, अ शीट ओवर हियर, जो आपको यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प करेगा समझने में कि कैसे किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, and please write in the chat if there's something you want to share, if there's something I'm asking, then please write in the chat so it becomes a interactive session जहाँ पे आप मुझे बता पा रहे हो कि आपके plans क्या है या what you think. Okay. Now let me tell you, for example, let's talk about कि आपका एमबीबीएस का सीट आपका कैसे आपका फिल होता है। So let me give you some example in terms of your state. अभी मैंने बाहर का तो आपको एग्जांपल दिया कि दिल्ली के लिए आपको कितना चाहिए, एम्स ऋषिकेश के लिए आपको कितना चाहिए होगा। अगर आपको अपने स्टेट के बाहर जाना है then you have to get a very good score to get into MBBS college. बट अगर हम बात करें पंजाब की, अगर बात करता हूँ कि मुझे अमृतसर के गवर्नमेंट कॉलेज में कितना स्कोर चाहिए एंड व्हाट इज द स्कोर आई नीड इफ आई वांट टू गेट इनटू गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर, आई वांट टू गेट इनटू गवर्नमेंट कॉलेज पटियाला, तो मुझे कितना स्कोर चाहिए होगा और कितने स्कोर के ऊपर मेरे यहाँ पे सीट क्लोज होगी। लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक एट दैट, उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो लेट मी शो यू दिस। ऑलराइट, बाय द वे आई होप आप सबको यहाँ पे स्क्रीन मेरी यहाँ पे दिख रही है। यू कैन गिव मी अ थम्स अप फॉर दिस। Again, please, any one of the student can come near to the laptop and give me a thumbs up. Okay. So please let me know अगर कोई चीज दिख नहीं रही, तो अगर कुछ नहीं भी दिख रहा then also please raise your hand and then I'll ensure that कि उसे मैं like magnify कर लूँ। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे zoom in कर लेता हूँ। Let me zoom in a bit. Yeah, so that you can see this and let me know अगर दिख नहीं रहा होगा तो। So what you can see in this ना, you can see some medical colleges over here जो आपके यहाँ पे पंजाब के हैं। You have All India Medical College Bhatinda, so you have AIIMS Bhatinda। अगर आप में से कोई है जो कहता है कि नहीं यार मुझे एम्स बठिंडा में ज्वाइन करना है, तो उसके लिए भी आपको ऑल इंडिया लेवल पे आपको अपनी सीट वहां पे सिक्योर करनी पड़ेगी। लेकिन बाकी जो आपके यहाँ पे कॉलेज है, मोहाली में यू हैव अ कॉलेज विच इज गवर्नमेंट कॉलेज, अमृतसर में यू हैव अ कॉलेज, पटियाला एंड फरीदकोट, सो दीज आर ऑल माय गवर्नमेंट कॉलेजेस ओवर देयर। अब गवर्नमेंट कॉलेज का एक सिंपल रूल है, अगर पंजाब का कोई गवर्नमेंट कॉलेज है, लेट्स से गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर, अगर गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर के पास 250 सीट्स है, अगर ये लोग कहते हैं कि इनके पास है टोटल यहाँ पे 250 सीट्स आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, सो 250 सीट्स में से 15% सीट्स फिल होगी ऑल इंडिया कोटा पे। आउट ऑफ दिस 250 सीट्स 15% सीट्स विल बी फिल्ड फ्रॉम द ऑल इंडिया कोटा के ऊपर। सो 15% सीट्स आपकी जो होती है यहाँ पे वो आपकी ऑल इंडिया कोटा पे आपकी फिल की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इसको सिंपल मैं बताता हूँ, अगर आपका मोहाली में कॉलेज है तो मोहाली में आपके पास 100 सीट्स है, सो 100 में से 15 सीट उन बच्चों को मिलेगी जो पंजाब के नहीं है, जो बाहर के स्टेट्स है। लेट्स से कोई चेन्नई में पढ़ रहा है, कोई चेन्नई में अपना 12th खत्म किया किसी ने, उसे पंजाब से पढ़ना है, कोई हिमाचल का है जिसको सीट चाहिए पंजाब के मोहाली के मेडिकल कॉलेज की, तो वो 15% सीट या 15 सीट जो होंगी 100 में से वो उन बच्चों के लिए वहां पे होती है, राइट। बाकी 85% सीट या बाकी 85 सीट्स आउट ऑफ 100 विल बिलोंग टू स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब। बाकी की जो आपके यहाँ पे सीट्स रहेंगी दे एक्चुअली बिलोंग टू योर लाइक आपके खुद के स्टेट के बच्चों के लिए वो सीट्स यहाँ पे होती है। नाउ दैट इज द एडवांटेज वी हैव टू कैश ऑन। ये मेरा यहाँ पे वो एडवांटेज है जिसके ऊपर हमें यहाँ पे ध्यान देना है। अगर मेरे पास 100 सीट्स हैं, 100 में से अगर मेरी 85 सीट्स मेरे बच्चों के बिलोंग कर, लाइक अगर हमारे स्टेट के बच्चों के लिए बिलोंग करती है, सो दैट इज समथिंग वी हैव टू लुक इनटू। इनके ऊपर हमें यहाँ पे फोकस करना है। वी हैव टू सी कि हम स्टेट कोटा पे हमारा सीट हम यहाँ पे कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि सर कैसे होगा मेरा प्रिपरेशन, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव 2 years, 2 साल इनफ होते हैं एक अच्छा स्कोर लाने के लिए। 2 years आर गुड इनफ टू गेट लाइक अ अमेजिंग स्कोर इन नीट एग्जाम, राइट। Even after that, I will give you some idea about the scorecard you need to have to secure your government seat. आप गवर्नमेंट सीट को कैसे सिक्योर कर सकते हो उसके लिए हम यहाँ पे एक थोड़ा सा आइडिया लेते हैं। सो लेट्स से वी टॉक अबाउट कट ऑफ। हम 2023 के कट ऑफ को हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। सो दीज आर माई एमबीबीएस का कट ऑफ यहाँ पे, एंड आई विल जस्ट फोकस ऑन द कट ऑफ ऑफ माई गवर्नमेंट कॉलेज। प्राइवेट कॉलेज है आपके यहाँ पे नीचे वाले,
DMC, लुधियाना, ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज, दे आर ऑल माय प्राइवेट कॉलेज. इनको हम इग्नोर करते फिलहाल के लिए. लेट्स फोकस ऑन द गवर्नमेंट कॉलेज. सो लेट्स से गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर. गवर्नमेंट कॉलेज अमृतसर का ओपन कैटेगरी का जो कट ऑफ स्कोर है आपके यहाँ पे वो है 610. सो कम है यहाँ पे स्कोर. और ये जो 610 जो आपके यहाँ पे स्कोर है ना, ये पहले राउंड के बाद है. याद रखना, काउंसलिंग के टाइम पे आपके 2 राउंड्स होते हैं, या राउंड 1 या राउंड 2. सो राउंड 1 के बाद इस स्कोर के ऊपर भी बच्चे को एमबीबीएस की सीट मिली है. तो आई एम वेरी श्योर कि राउंड 2 के बाद तो ये स्कोर थोड़ा और नीचे गया होगा. लेट्स से 600 या 590 तक ये स्कोर आपका जा गया होगा. ओके. तो अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो इस स्कोर के ऊपर उसे वहां पे सीट मिल सकती है. अगर कोई बैकवर्ड एरिया का है, देयर इज वन मोर कैटेगरी ऑफ बैकवर्ड एरिया और बॉर्डर लाइन एरिया, बॉर्डर एरिया, तो उनके लिए यहाँ पे कट ऑफ रहता है. सो यू कैन सी द कट ऑफ ओवर हियर. तो स्टेट कोटा पे आपका कट ऑफ नीचे आता है. अगर मैं अपने स्टेट में अगर अपना कॉलेज चाहता हूं देन मेरा कट ऑफ यहाँ पे नीचे आएगा. अगर मैं यही चाहता हूं मैं ऑल इंडिया लेवल पे सीट पकड़ना, जैसे कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं पौंडीचेरी से करूं अपने एमबीबीएस या गुजरात से करूं, देन आई हैव टू गेट अ वेरी गुड स्कोर. बट स्टेट कोटा पे आपका कट ऑफ यहाँ पे आपको नीचे आता है. लुक व्हाट कट ऑफ यू आर फाइंडिंग एट एससी कैटेगरी. एससी पे कितना नीचे आ चुका है आपका यहाँ पे, राइट. ओबीसी पे आपके यहाँ पे कितना नीचे आ चुका है. सो दिस इज अ रेफरेंस यू हैव टू लुक एट. इतना इंटिमिडेटिंग जितना लगता है ना ऑन पेपर कितना स्कोर लाना है, उतना वो है नहीं. और स्टेट कोटा पे अगर आप इतना स्कोर अगर आप ले आते हो, इफ आई एबल टू गेट दिस काइंड ऑफ स्कोर, आपको आपका एमबीबीएस का सीट आपको मिल जाएगा. एंड योर नेक्स्ट 5 years एंड योर करियर गेट्स वेरी मच सिक्योर विद योर फील्ड. तो प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग. सो दैट इज द काइंड ऑफ स्कोर यू नीड टू गेट. ये आपका वो स्कोर होता है. एंड हाउ यू जस्ट हैव अ लुक हाउ द स्कोर इज गोइंग टू चेंज एज यू कम ऑन टू द स्टेट कोटा के कट ऑफ के ऊपर. तो अगर आपको वो 85% सीट्स अगर आपको ग्रैब करनी है, देन दिस इज द रेंज यू हैव टू टारगेट फॉर. तो अगर आप, मैं कह रहा हूं, अगर आप 600 पे अगर आप ला रहे हो, अगर आप 600 पे अगर आप टारगेट करते हो, आपका 600 पे अगर आपका स्कोर आता है 2 साल के बाद, तब भी आपका सेकंड राउंड तक कोई ना कोई मेडिकल कॉलेज में आपका हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक कोई ना कोई, अमृतसर में भी आपको आपका सीट आपको मिल सकता है स्टेट कोटा के ऊपर. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. एंड यू कैन सी हाउ द कैटेगरी वाइज योर कट ऑफ इज गोइंग टू चेंज ओवर देयर, राइट. हम प्राइवेट नहीं देखते बिकॉज प्राइवेट में कट ऑफ काफी नीचे जाता है. बट हम प्राइवेट के बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज यू नो दैट प्राइवेट कॉलेज की फीस काफी ज्यादा होती है. एक साल की फीस आपके यहाँ पे 25 lakhs जितनी कई बार हो जाती है, राइट. इट कैन रेंज फ्रॉम लाइक 10 to 25 lakhs पर ईयर. सो उनके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे. हमारा फोकस हमेशा यहाँ पे रहेगा हमारा गवर्नमेंट कॉलेजेस. एंड गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको यहाँ पे सीट मिलती है ना, एंड लेट्स से उनका ईयरली फी है अराउंड लेट्स से 1,15,000 उनका फी है वहां पे. वी हैव नंबर ऑफ स्कॉलरशिप फॉर पीपल हु हैव एक्चुअली सिक्योर्ड अ सीट इन गवर्नमेंट कॉलेज. तो वो स्कॉलरशिप की वजह से आपका वो भी चीज आपका वेवियर का हो जाता है. लाइक यू कैन एक्चुअली फाइंड योरसेल्फ गेटिंग अ स्कॉलरशिप फॉर अ कंप्लीट फायर प्रोग्राम. दैट कैन आल्सो हैपन टू यू. सो दैट इज नॉट अ कंसर्न एज वेल. ठीक है. तो ये है मेरे यहाँ पे कट ऑफ एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू नो. ये है मेरा कट ऑफ फॉर माय एमबीबीएस. सिमिलर कट ऑफ मुझे मिलेगा यहाँ पे मेरे बीडीएस के लिए भी. डेंटल कॉलेज गवर्नमेंट के सिर्फ 2 ही है पंजाब में. एक है अमृतसर के अंदर, एक है आपका पटियाला में. और आप देख सकते हो, यू कैन सी द कट ऑफ ओवर हियर एज वेल, राइट. जो कट ऑफ यहाँ पे मेंशन नहीं किया है उसको भी आप फिलहाल के लिए इग्नोर कर दो. बट बाकी कट ऑफ आपके यहाँ पे मेंशन किए गए. यू हैव अ 527, 514 आर द कट ऑफ फॉर कैटेगरी. Someone has a question? Yeah, I think someone has a question. They can ask the question. All right. You can. अच्छा, किसका कोई सवाल हो ना इसके अंदर तो पूछ लेना. अनम्यूट करके अपना सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हो. अगर कोई भी सवाल अगर आपको लग रहा है कि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही, then please ask a question. 350, 349 is a kind of score for SC category to get into a dental college, right? So you can see dental का कट ऑफ आपका नीचे ही जाता है. So it's like this. You have a MBBS, you have a dental, and then you have one more course जो इतना फेमस नहीं है या इतना लोग उसके बारे में बात नहीं करते, but it is a very good course to have a career, to have a waypoint, and that is your veterinary science. Veterinary science का भी आपका you have this college in Ludhiana. आपने नाम सुना होगा. You have a Gadwasu college in Ludhiana, or you have a college का name Gadwasu करके. People from Ludhiana might be familiar with that. So that college is a very good college for veterinary science. तो वहां से अगर आप ले आते हो ना, if you say अगर आपका स्कोर अगर आ रहा है आपका 500, 485, 520, even at that score you can get a seat over there. So veterinary college is also a very good college which you have in your state. ठीक है. तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे. सीट मैट्रिक्स समथिंग यू कैन लेटर ऑन यू कैन हैव अ लुक एट दैट. कितनी सीट्स होती है हर एक कॉलेज के अंदर, कितने कैटेगरी को कितनी सीट्स है, वो सब आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा है. फिलहाल आपको फोकस करना है कि आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए. तो आज से अपने दिमाग में बिठा लो कि आपको कितना स्कोर लाना चाहिए, कितना स्कोर आपको करना है टू सिक्योर एमबीबीएस का सीट यहाँ पे. नॉट इवन डेंटल, एमबीबीएस का सीट. वी ऑल्सो हैव नर्सिंग कॉलेज एज वेल. पंजाब ऑल्सो, अगर आप में से कोई है जिनको नर्सिंग में करियर बनाना है, देन वी हैव फ्यू गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल नर्सिंग के पंजाब में. नर्सिंग के साथ क्या होता है, दे हैव देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम. तो जब इनका अलग से एंट्रेंस एग्जाम होता है, अगर आप
कर रहे हो नीट की प्रिपरेशन 2 साल से अच्छे से, देन ये एग्जाम क्रैक करना आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं होगी, ये 2 लेवल नीचे ही होता है। सो अगर आप नीट की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो बहुत अच्छे से डेडिकेशन से, देन cracking a nursing exam and to get into a nursing college is not a big thing for any of the student who has been doing that. So these are some of the government colleges of nursing which can have a look, right? So ये सारे आपके government college आपको लेंगे. We are not focusing on the private college. Let's focus on only the government colleges over here. ठीक है? तो ये है आपका यहाँ पे सीट मैट्रिक्स. The whole idea to show you this thing is going to be कि आपको पता चले कि आपके स्टेट में आपके कॉलेज के अंदर कट ऑफ आपका कितना जाता है और कितने स्कोर के ऊपर आपका मिलता है. बिकॉज हम जब जनरली बात करें तो जनरली हम कहते हैं कि हाँ चाहिए 650 चाहिए, 670 चाहिए, तब मुझे मेरा सीट मिलेगा. बट स्टेट कोटा पे आपका स्कोर नीचे जाता है, राइट? सो यू कैन ऑलवेज, एंड बिकॉज यू ऑल ऑफ यू आर बिलोंग टू 11th ग्रेड, आपके पास तो काफी अच्छा टाइम है प्रिपेयर करने का, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करने का, एंड टू प्रिपेयर इन सच अ वे दैट यू कैन गेट योर स्कोर वेरी इजीली. ओके, not even this, not even like these colleges, you can also get a score which can actually land you in the college like your मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज या एम्स ऋषिकेश या एम्स दिल्ली में भी आप जा सकते हो अगर आप अच्छा स्कोर लेके आते हो तो. ओके, सो दैट इज समथिंग आई हैव टोल्ड यू. अब इसके बाद आई विल हैव सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आई विल शेयर विद यू. अच्छा, पहले मुझे ये बता दो कि आई होप इसमें सब कुछ चीज आपको समझ आ रही है और इसको लेके कोई आपको यहाँ पे सवाल नहीं है. इफ एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस, देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन. अगर किसी का कोई यहाँ पे सवाल है, कोई अगर चीज आपको यहाँ पे पूछनी है सीट्स को लेके या एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो, देन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन. All right, so फिलहाल के लिए I'll assume that you have no questions. Now let's have a look at your, yeah, thank you so much for giving me the thumbs up. All right, now let's have a look at a tentative timetable what we will have. See, I won't say timetable, what is the questionnaire we will be trying to run over here. So एक आपको tentative idea आपको देता हूँ, बाद में आपको डिटेल में आपको मिल जाएगा questionnaire biology का, because I'm a bio faculty, so that is something I will be discussing right now. So you have number of chapters. 11th में आपके chapters काफी है. अभी तो चलो तभी आपके कुछ चैप्टर्स उन्होंने कम कर दिए, बट वी स्टिल हैव अ गुड नंबर ऑफ चैप्टर्स इन 11th ग्रेड, राइट? सो विल फॉलो द एनसीईआरटी का सीक्वेंस. हम यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी का सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो करेंगे. अब इवन दो मेरा लिविंग वर्ल्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे यहाँ पे नहीं है. अच्छा, समवन हैज अ क्वेश्चन क्या? जस्ट वेट अ मिनट. समवन आई गेस हैज अ क्वेश्चन. ऑलराइट, ओके. सो इवन दो मेरा लिविंग वर्ल्ड बहुत हाई वेटेज वाला मेरे यहाँ पे चैप्टर नहीं है, even then we will try to cover this chapter in 1 or 2 lectures. फटाफट इसे हम यहाँ पे खत्म करेंगे because it's a very small chapter, has a low weightage, low to medium weightage इसका यहाँ पे आपको मिलता है, but we'll not miss the chapter completely. ऐसा हम नहीं करेंगे हमने पूरा चैप्टर यहाँ पे उसे like साइड में कर दिया. We won't be doing that. We'll just try to see some main points over there. We'll try to some content which has some kind of weightage, and we'll solve some questions, and then we'll move ahead, right? Similarly, we'll have a look at, then we have a biological classification, so we'll follow the sequence. हम यहाँ पे हमारा एक रेगुलर सीक्वेंस हमारे यहाँ पे हम फॉलो करेंगे, और आइडिया ये रहेगा क्योंकि आप सब लोगों ने ये चैप्टर्स अपने पढ़े हैं, ये सारे चैप्टर्स आपने स्कूल में अभी तक कवर कर लिए होंगे, राइट? दैट्स ट्रू. तो इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे हम पेस मेंटेन करेंगे. विल हैव स्लाइटली ये विद अ सर्टेन टेम्पो, एक सर्टेन पेस के साथ हम यहाँ पे हमारे लेक्चर रन करेंगे. कुछ अगर आपको लगता है कि आपको चीज समझ नहीं आ रही, अगर आपको लग रहा है कि फास्ट से जा रहा है क्लास, देन यू कैन ऑलवेज लेट अस नो. यू कैन राइट इन द चैट एंड हम लोग स्लो कर देते हैं, बट विल रन विद अ सर्टेन टेम्पो, ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये रहे कि आपको फटाफट रिवाइज करा के वी कैन मेक यू सॉल्व क्वेश्चंस. तो ये थोड़ा सा आपका फास्ट ट्रैक रहेगा. इट विल स्लाइटली फास्ट ट्रैक. सो व्हेन आई एम टीचिंग यू मोनेरा, सो आई विल बी टीचिंग यू मोनेरा इन सच वे दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग एज वेल. रिवाइज भी करा दूंगा आपको यहाँ पे, एंड वी आर ऑल्सो इंश्योरिंग दैट कि आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए. ओके, द होल आइडिया इज, देखो एक चीज आपको याद रखनी है, नीट के अंदर इट्स क्वाइट सिंपल, एंड विद बायोलॉजी आई विल टेल यू इट्स क्वाइट सिंपल. रीड एनसीईआरटी, समझो एनसीईआरटी को, एंड सॉल्व वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस. दैट्स ऑल यू हैव टू डू. अपना एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी को समझो सही तरीके से, इनसाइड आउट यू हैव टू अंडरस्टैंड द एनसीईआरटी बाय एवरी मींस, एंड देन यू हैव टू सॉल्व वॉल्यूम ऑफ क्वेश्चंस. क्वेश्चन सॉल्विंग आपका ग्रिप बनेगा टॉपिक के ऊपर. क्वेश्चन सॉल्विंग आपके लिए एक एविडेंस बनेगा आपके खुद के लिए कि आपको टॉपिक आपको अच्छे से आ रहा है. और जब आपसे क्वेश्चन सॉल्विंग आपसे नहीं होता, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटर कि आपको किस चीज को एड्रेस करना है. सो दीज आर द ओनली 2 थिंग्स यू हैव टू डू फॉर नेक्स्ट 2 years. अगले 2 साल के लिए अगर आप ये चीज करते हो कंसिस्टेंटली, आई डोंट सी अ रीजन कि क्यों आपका 340 345 स्कोर आपका नहीं आएगा नीट के अंदर, बायोलॉजी के अंदर, नॉट नीट, बायोलॉजी के अंदर. ओके, सो व्हाट वी हैव डन हियर इज वी हैव गिवन देम द प्रायोरिटीज फॉर दिस चैप्टर्स. यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो प्रायोरिटी चैप्टर को यहाँ पे मिली है, इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन कि पिछले 4 सालों में कितने क्वेश्चन यहाँ पे आए थे, कितने क्वेश्चंस आपके इन टॉपिक से आए हुए हैं, उनके बेसिस पे हमने उन्हें यहाँ पे वेटेज दिया हुआ है.
यू कैन सी प्लांट किंगडम में से जनरली आपके 2 से 3 क्वेश्चन रेगुलरली अब आपके यहाँ पे आ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई वी हैव गिवन देम अ हाई प्रायोरिटी वेटेज। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे प्लानर हमारे यहाँ पे रन करेगा एंड यू विल फाइंड दिस चैप्टर्स विल बी कवर्ड ओवर देयर। सो विल गो इन अ लीनियर वे। सो बेसिकली आपके पहले यहाँ पे पहले 10 चैप्टर आपके यहाँ पे आएंगे विच यू ऑलरेडी नो, एंड देन विल जंप ऑन टू द प्लांट फिजियो। उसके बाद we will be jumping on to plant physio and then the animal physio. That's how it is going to work, right? So this is what we'll be doing. इस तरीके से आपका रन किया जाएगा एंड टेस्टिंग प्लानर एक बार आपका बन जाता है देन विल बी शेयरिंग दैट विद यू एज वेल। सो टेस्टिंग प्लानर विल बी इन द सिंक विद द केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, उनके साथ आपका सिंक रहेगा एंड विल इंश्योर दैट कि आपका वीकली आपका चैप्टर टेस्ट हो। नॉट राइट नाउ, दैट विल हैपन आफ्टर सर्टेन वीक्स। कुछ सर्टेन वीक्स के बाद वी विल बी रनिंग द we will actually share with you the testing plan जहाँ पे आपके टेस्ट आपको मिल जाएंगे कि कौन से टेस्ट आपके कौन से दिन आपके यहाँ पे हो रहा है। ओके, सो दैट इज व्हाट विल बी डूइंग। अब 11th ग्रेड में होने का फायदा ये होता है दैट यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। लेट मी टेल यू वन थिंग, 11th आपका ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू 12th ग्रेड। अगर आप 11th ग्रेड करके इफ यू हैव अ वेरी गुड ग्रिप ऑन द टॉपिक्स, यू हैव अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी काफी अच्छी अगर आपकी हो जाती है, 12th ग्रेड इन बायोलॉजी स्पेसिफिकली विल बी अ वॉक इन अ पार्क फॉर यू। इट विल बी अ पीस ऑफ केक। अगर आपका 11th अच्छे से अगर आप यहाँ पे कर लेते हो, अगर आप समझ पा रहे हो सारी चीजों को अच्छे तरीके से, 12th करते समय आपको इतनी दिक्कत नहीं आती। 12th आपका काफी आसानी से हो जाता है, चैप्टर भी आपके कम होते हैं वहां पे एंड यू गेट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम फॉर रिवीजन एज वेल। ठीक है, सो दिस विल बी माय प्लानर, दिस विल बी द टेंटेटिव प्लानर व्हिच विल बी रनिंग एंड यू विल बी हैविंग एक्सेस टू दिस एज वेल आफ्टर सम टाइम। द कोऑर्डिनेटर्स विल बी शेयरिंग दिस विद यू, सो यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक एट दैट सेपरेटली एंड आप उसे वहां पे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। दिस इज ऑल्सो वन थिंग विच यू हैव टू नो इन दिस, राइट। एक टेस्टिंग प्लानर आपका जो एक अलग से बनेगा, आई विल बी शेयरिंग दैट विद यू, बट आपको यहाँ पे एक आइडिया देना चाहूंगा दैट यू कैन हैव अ चैप्टर टेस्ट। लेट्स फॉरगेट कीप असाइड द दिस चैप्टर्स राइट नाउ, बट आपको बताना चाहूंगा कि आपके टेस्ट टाइप आपके यहाँ पे कैसे होते हैं। योर टेस्ट टाइप कैन बी लाइक योर चैप्टर टेस्ट, यू कैन हैव अ मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट में आपके कई सारे चैप्टर एक साथ आएंगे, जैसे आपका यूनिट डायमेंशन, मैथमेटिकल टूल्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, ऐसे लाइक कलेक्टिवली आपके यहाँ पे चैप्टर्स आएंगे। याद रखना जब भी आपका मेजर टेस्ट होगा दैट विल बी ऑफ माय 720 मार्क्स। आपको ये बात ऑलरेडी हमारे पहले के फैकल्टीज ने आपको बताई होगी कि फिजिक्स में आपका होगा, आपका जो टोटल फेज का आपका स्कोर रहेगा आपका वो आएगा आपका 180 मार्क्स के लाइक क्वेश्चंस आपके आएंगे। केमिस्ट्री में भी यू विल हैव अ 180 मार्क्स एंड बायोलॉजी यू विल हैव अ 360 मार्क्स। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन अ मेजर टेस्ट। सो मेजर टेस्ट इज लाइक अ फुल नीट का टेस्ट, 3 घंटे का आपका ये होगा। चैप्टर टेस्ट आपके स्मॉल होते हैं, चैप्टर टेस्ट विल हैव ओनली 40 क्वेश्चंस और 45 क्वेश्चंस, बट एमटी आपका लाइक विल बी अ फुल टेस्ट, ओके, 70 मार्क्स का। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड ओवर देयर। अभी आप इसको फॉलो नहीं करोगे, इट्स कंप्लीटली फाइन बिकॉज वी विल मेक अ सेपरेट प्लानर फॉर यू अलग से, बट दिस इज व्हाट यू हैव टू नो एंड वी एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू गिव द टेस्ट रेगुलरली सो दैट वी कैन मॉनिटर योर स्कोर कार्ड। हम आपका स्कोर कार्ड देख सके, मॉनिटर कर सके एंड देन वी कैन गिव यू द फीडबैक ऑन दैट, राइट। तो ये चीज को आपको यहाँ पे रखना है, यहाँ पे ध्यान। नाउ टेल मी इफ एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर किसी को कोई सवाल है यहाँ पे, इफ एनीवन हैज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थिंग्स वी हैव जस्ट डिस्कस विद यू, देन प्लीज लेट मी नो। सो वी हैव दिस बायोलॉजी का कोर्स प्लान आपको मिल जाएगा इन सम टाइम। दिस इज अ प्लानर व्हिच विल बी फॉलोइंग राइट नाउ एंड लीनियर आपके प्लान है यहाँ पे। एंड द सेकंड थिंग इज अबाउट द टेस्टिंग प्लानर, दैट इज आल्सो समथिंग यू विल रिसीव सेपरेटली, ओके। टाइमिंग्स आई थिंक आप सबको यहाँ पे क्लियर है। हमारे क्लास की टाइमिंग्स हमारे यहाँ पे क्या रहेंगे, आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज बीन वेरी मच क्लियर टू यू। 45 मिनट्स का हमारे यहाँ पे क्लास रहेगा। इतना याद रखना, कल से आपका पहला क्लास स्टार्ट हो रहा है ना, इतना याद रखना कि आप लिविंग वर्ल्ड पढ़ के आना थोड़ा बहुत, ताकि हम क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकें। और क्वेश्चन सॉल्विंग करते समय आपको इंटरेक्ट करना पड़ता है, अभी नहीं कर रहे चलेगा, बट क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पे यू हैव टू ड्रॉप अ मैसेज इन द चैट, ओके। एंड वी विल बी डूइंग अ बल्क ऑफ सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चन विद इन दिस मीटिंग, ताकि you have a grip on the topics over there, right? Okay, so that is something we have discussed and these are the few things you have to know. बाकी if you have any other questions तो बताइए मुझे। if you have नीट के ऊपर बेस कोई और सवाल हो तो, अगर आपको जानना हो किसी और एग्जाम के बारे में। along with NEET we also have some other exam as well, like जैसे आपका यहाँ पे CUET का एग्जाम होता है, तो अगर आप में से कोई है जिसको BSc करना है एक अच्छे कॉलेज से, then they can go for that exam as well। तो एक और चीज याद रखना कि अगर आप नीट की कर रहे हो प्रिपरेशन, देन बाकी एग्जाम भी आपकी ऑटोमेटिकली आपकी प्रिपेयर हो जाती है। सबका करिकुलम आपका यहाँ पे सेम रहता है, बल्कि इट विल बी 1 लेवल स्लाइटली बिलो द नीट एग्जाम, सो यू कैन स्टिल प्रिपेयर फॉर दोज एग्जाम एज वेल, ठीक है। अलॉन्ग विद द नीट एग्जाम आप करोगे तो उनका भी आपका प्रिपरेशन आपका पे हो जाएगा,
Okay. All right. Anything else anyone has to share over here, then please let me know. Anything, any questions you have from your side, then let me know. No questions, nothing. All of you are just like nothing to say. All right. So that is something we have done. That is something we have done in the today's your session. Now we'll be catching you again. So that is what we have done. Now we'll be catching